Yes, beta, All right. recording start हो रही है. Okay. So, a very pleasant morning to our respected principals, sir, teachers, and to each and everyone who has joined us today. I am Tisha Rotela from BCom Honors Second Year. And I am Payal from BCom Honors third year. On behalf of Vanijay, the Commerce Society of our own Acharya Narendra Dev College, I welcome you all in today's webinar. Since I am also a student and confused too, that should I go for a job or focus on my career? Okay. Well, Tisha, no more confusion will be there after this webinar by our honorable guest CA Pankaj Goel. Before we move ahead, I would like to request Principal Sir to speak a few words. I think Sahil is not here. He's Hello, joining sir. back, I guess. He's joining back. Yeah, I think Sahil is not here. Okay, so well, Pankaj says accomplishment can't be described in just 5 seconds, but still would like to give you an overview. Uh, uh, as sir is not there, so I would request our HOD ma'am to please welcome our guest. Okay, thanks, Tisha. Uh, I've known Pankaj since my college days, and uh, explaining about him in words is, I mean, it's a very difficult task, but somehow we have tried to uh, briefly describe his accomplishments. So, to begin with, Pankaj is the founder cum director of CA Business Consulting Limited. Currently, he is financial management specialist for ADB funded assignment for Tamil Nadu, and he's a team leader for state of Jharkhand for the revenue augmentation. He's a chartered accountant with Masters of Commerce and MPhil degree in finance. He has a 20 years experience in the financial management, urban infrastructure financing. He's also providing technical assistance to private and government organizations, capacity building, training assistance. He also has a 3 years experience in income tax, statutory, and tax audit. He has also experience with esteemed consulting firm like Ernest and Young Private Limited. He's also taught with Delhi University in the prestigious Sri Ram College of Commerce and Khalsa College also. He's left the job, in fact, I should add to this. Uh, he has previous experience of working with multilateral agencies like World Bank, Asian Development Bank, Department for International Development. God, he has a previous experience of working with clients such as Ministry of Urban Development, Ministry of Housing and उधर नेट ही नहीं है मेरा. Poverty Alleviation, Government of India. He was also part of a team which designed the Smart City guidelines. He has his MPhil degree in finance from the prestigious Delhi School of Economics, University of Delhi. Uh, he is a qualified chartered accountant. Then he has cleared his UGC NET examination. He is master's from Delhi School of Economics and has done his graduation from Sri Ram College of Commerce. So over to you, students. This is what I wanted to briefly tell you about Pankaj, though his accomplishments are a lot.
And I think our principal, Dr. Ravi Tuteja, has also joined us, so you can request him to say a few words. Yes, ma'am. Yeah, thank you, Shalu. Yeah, thank you, Shalu. There was some net issue, so I had to leave. You know, it- It's a very good initiative from the Department of Commerce, Vanija Society, to start with this webinar. And during this time of pandemic, the topic is very relevant that we have to stop worrying about the we should stop worrying and start earning. So I suppose that today's lecture will definitely going to help commerce students and to acquire the knowledge about how to get the job and how to build the career. And congratulations, Vanija Society, Teacher in Charge Commerce, and an initiative to all of you. So, hello. Yes, yes, sir. I'm not. Yes, sir. Now, yeah. I'm audible now. Yes, sir, you are Yes, You sir. can hear. Mm, Okay, yeah, okay, okay, okay. Thank you very much. Thank you, Pankaj, for coming here and sparing your valuable time and sir, coming here to. it's a privilege to be back with, frankly speaking, Shalu and Sandeep. We have been my classmates in Yeah, 94. yeah, she told me. Yeah, So yeah, it is yeah. a privilege to be back So, with them. If you can share a little bit of experience, why not? thank you, and we are definitely be grateful to you, and we are grateful to you, and we are surely means exploiting your friendship for inviting you and to deliver a lecture here. Sir. ठीक है, Mr. So with your permission, Pankaj sir, ji, you shall can I start start? with your presentation. Yeah, sure. Please. Pankaj, Yes, Vasant. few more Yeah. minutes. Our students have some formalities. Let them finish. They are very excited. Actually. Yeah. I'm waiting. No issue. No waiting. yes, sir. Thank you so much, Ravi sir, for your kind and lovely words. Now, I would like to request our honorable guest, Pankaj sir, to please start with his presentation. We are really excited. Thank you, Thank sir. you, and I hope if a little bit experience which I have, Shalu has put it in a very glorified words, but the little bit experience which I have it, I'll certainly try to share it. And whatever the queries you guys were having, already I have got those queries. So I'll try to reply those queries through the presentation. Still, उसके बाद भी अगर किसी का रह जाता है, kindly let me know, and then we can have a question answer round also. Yes, I sir. hope Yeah. I'm audible to So- everyone. Yes, sir. Perfect. You are clearly very audible. You I are. need, So, I need the presentation right because at present Miss Vasundhara is presenting it, so I need a presentation right. okay. So, Vishali, please stop presenting. Yes, sir. Now you can start with your presentation. In between the webinar, students, if you are getting any kind of queries, questions, you can put that into chat box. Sir will be taking up the question at the end. I hope you guys are able to see my screen. No, sir. Yeah, yes, sir.
So it just I've tried to compile in a very simpler way, and whatever queries you guys have mentioned in your Google form, so it will be primarily dealing with those queries and how you can, after graduation, you can resolve your queries. So as we have kept a very catchy topic, stop worrying, because we remember our time when we were students, there was no guidance to us at that time. And logically, whatever guidance we got it from our friends, and at that time, even the technology, the internet was not at this peak. So whatever knowledge, whatever information we gather, we build our career on that basis. So today we try to capture all the opportunities which is possible, plus the future prospects which you can add to your skills. As I rightly says in my classes also, because I take classes for CA Foundation on satellite, it's basically your 3 or 4 4 साल की मेहनत है और 40 साल की ऐश है, या आप रिवर्स कर लीजिए 4 साल की ऐश और 40 साल की मेहनत. तो ग्रेजुएशन के बाद आपका एक्चुअली अब आपका वर्क, आपका टारगेट स्टार्ट होगा. एंड लेट मी एश्योर यू, एज अ स्टूडेंट आपके माइंड में कई बार आता होगा इतनी पढ़ाई कर ली है, व्हेन विल स्टार्ट अर्निंग. आई विल शेयर वन ऑफ माय एक्सपीरियंस हियर. 2 or 3 real life stories I'll share, and then I'll run the presentation also slowly. I remember in 97 when I did my graduation from SRCC, there was some vacancy published by Vardhman Spinning Mills. Vardhman जो स्वेटर्स वगैरह का वूल में इन्वॉल्व है, तो लुधियाना में उनका ऑफिस है. So I applied for that. एक रिटन एग्जामिनेशन हुआ, क्लियर हो गया. फिर they invited me to Ludhiana. 97, along with my father, I went to Ludhiana. And you will be surprised, I still remember it was my first interview which I gave it for 7 to 8 hours. There were several rounds, group discussion, meeting with VP, meeting with president, everything. And luckily, I cleared. दिल्ली में एक जगह है, आप सब जानते होंगे, ITO. ITO में उर्दू घर में उनका एक ब्रांच ऑफिस था. I was getting job there. I was getting a job of assistant manager at that time, 97, और 15,000 रुपए मुझे मिल रहे थे. और उस समय 15,000 was a very good amount, handsome amount. अगर आज शायद मैं कंटिन्यू करता है, would have been a president there. I went to my father. पापा देखो जॉब मिल गई है. He said nothing. You wanted to go for the interview, you went, you were selected, now you are not doing a job. I said, why? I can help you. He said, nothing, complete your qualification, because graduation के बाद आप एक लेवल पे जाके अटक जाओगे, क्योंकि उस लेवल पे कहीं ना कहीं कोई प्रोफेशनल आपके पास आएगा और आपकी प्रमोशन में दिक्कत आएगी. I followed his advice. I continued with my education. So why I took this example? कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछा था कि सर आफ्टर ग्रेजुएशन हम लोग अर्निंग स्टार्ट कर दें. अगर कोई फैमिली प्रेशर नहीं है तो मैं अभी अपनी प्रेजेंटेशन में रन करूंगा, काइंडली डू नॉट सैक्रिफाइस योर एजुकेशन. जितना पढ़ाई करना है, जितनी स्किल्स लेनी है, अभी टाइम है. द मोमेंट यू स्टार्ट अर्निंग, वो वाला चार्म, वो वाला एफर्ट, वो वाला लेबर आपसे पुट नहीं होता है. Before I start my presentation, I'll take one more example. 2009-10, 2009-10 में CA इंस्टीट्यूट ICI ने मुझे इनवाइट किया. हमारे CA में इंटर के बाद एक ओरिएंटेशन कोर्स होता था, वो मैंडेटरी था एग्जाम में बैठने के लिए. तो आई यूज्ड टू गिव द लेक्चर्स. तो यहाँ रोहिणी में मैंने एक लेक्चर लिया था. तो वहां कुछ स्टूडेंट्स बैठे थे बड़े फॉर्मल अटायर में, टाई वाई लगा के. I went to them. I said, "Ki, why you are here?" They said, "Sir, we are from Bank of America." I said, "From Bank of America, you are doing CA?" They said, "Yes." I said, "Why from Bank of America you are doing CA?" They said, "Immediately after graduation,
हमने बैंक ऑफ अमेरिका में स्टार्टिंग पोस्ट में ज्वाइन कर लिया, बट सर अब असिस्टेंट मैनेजर में आके मैनेजर में हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा, वी आर नॉट गेटिंग प्रमोटेड। आई सेड व्हाई? दे सेड द मोमेंट द मैनेजर कम्स, मैनेजर की जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब क्वालिफिकेशन मिनिमम सीए है, मिनिमम एमबीए है, वी डोंट हैव इट, सो वी गेट स्टक देयर। So these were two real life examples which I want to share with you to put a point that don't be in a hurry for going for a job, because that was a topic, job or career. Job you can get it right now also, but that will not take you for your long life, that will not take you for 60 years, 65 years. So I hope you got my point here. Proceeding further, as we always say, this is a very common word, सर ये तो पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, बट जनरली कहते हैं ना, कर्म बड़ा है भाग्य से, ऐसा मेरा विश्वास। सो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना भी कला है, एफर्ट है, वो सबको करना है। और ऐसा नहीं है कि आज हम आपको लेक्चर दे रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स को लगता है चलो जी एक सर्टिफिकेट मिलेगा इसलिए ज्वाइन कर लेते हैं, बट ऑनेस्टली ये वाला जो आज का सेशन है, इससे आपको जो एक गाइडेंस मिलेगी वो आपको फ्यूचर कैरियर को शेप करने में हेल्प करेगा। इसीलिए जॉब शॉर्ट टर्म टारगेट पे मत जाइए, गो फॉर योर लॉन्ग टर्म टारगेट। दैट इज माय सेकंड पॉइंट टू बी मेक टुडे। एक कलाम साहब ने बोला हुआ है, सपने उन्हीं के सच होते हैं जो सपने देखते हैं। आप सबने कुछ ना कुछ ड्रीम देखी होगी। आपके क्वेश्चंस में मैं देख रहा था ड्रीम आ रही थी, सीएस और लॉ का कॉम्बिनेशन, सर आपने कैसे एस्टेब्लिश किया, एटसेट्रा। आई विल शेयर माय जर्नी आल्सो। वो सारी क्वेरीज के बेसिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बड़ा फेमस कोट है, आई हेट इट एवरी मिनट ऑफ ट्रेनिंग। तो आज आप बैठे हैं, आपको लगेगा सर कहां टाइम वेस्ट हो रहा है, इससे बेटर तो हम गेम खेल लेते हैं, इससे बेटर हम पबजी खेल लेते हैं सर। बट आई सेड डोंट क्विट, सफर, लिव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एज चैंपियन। यही मैं कहना चाह रहा हूं। 4 साल की मेहनत या 40 साल की ऐश, कॉल आपकी है। तो मैंने सीए ज्वाइन किया था, मैंने ग्रेजुएशन के बाद ज्वाइन किया। आई ज्वाइन माई सीए आफ्टर ग्रेजुएशन व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी। You will be surprised, I cleared my entire CA without coaching. Shalu and Sandeep knows that. Not even a single coaching I attended for CA also. So I used to feel where I have got stuck. मैं क्यों पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे क्या मिलेगा? देखो मेरे फ्रेंड्स मस्ती कर रहे हैं, बट वो जो 3-4 साल मैंने मेहनत करा, आज उसी की वजह से शायद आपके कॉलेज ने मुझे बुलाया है। That is the reason. तो कभी भी शॉर्ट टर्म टारगेट में मत जाइए, ये मेरी आपको एडवाइस है। कई बार हम बहुत क्विकली जॉब चेंज करते हैं, चलो जी यहाँ 20, वहां 4,000 रुपए ज्यादा मिले, चलो जी शिफ्ट कर जाते हैं। डू नॉट चेंज योर लाइन। चलिए मुझे बताइए, ये मैंने आपके सामने कुछ टर्म्स लिए हैं, कितने लोगों को, जस्ट गिव मी ऑन चैट, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट स्मार्ट सिटी? How many of you know smart city? How many of you know who prepared the budget? Finance minister only presents the budget, but who prepares the budget? आपके पेरेंट्स ने अभी प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स पे करा होगा। Who decides the rate? Who prepares the form? उसका सॉफ्टवेयर कौन बनाता है? आपके कॉलेज में मैम पढ़ा रही हैं, मैम के साथ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है, तो उनकी जॉब कैसे लगती है? हैव यू एवर थॉट दैट? देयर आर इमेंस अपॉर्चुनिटीज, स्काई इज द लिमिट। एक मूवी आई थी रेड, आपने देखा होगा। रेड में अजय देवगन वाज इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, IRS, बट उनके साथ टीम थी, वो टीम भी तो इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं। वहां आप कैसे लग सकते हैं? वे हाउ यू कैन गेट अ जॉब देयर? व्हाई नॉट? यस, मिनिस्ट्री, जानवी सेठ ने कहा, अंशल सिंह ने कहा, IAS ऑफिसर, इंटायर फाइनेंस मिनिस्ट्री, ऋतिक गुप्ता। बैंक्स, अब बैंक में लेवल्स होते हैं, वहां पर आप कैसे जॉब कर सकते हैं। और यू नो इट नाउ डेज, स्पेशली द करंट गवर्नमेंट,
is more interested in the privatization. They realize कि privatization से ही हमारा work culture बढ़ेगा. जितने banks हैं वो भी आजकल privatization पे ही जा रहे हैं. I hope you are able to get what I'm discussing. Aanchal, Janvi, Ritik, Tisha, Payal, Rekha, Sheetal, you're able to get what I want to say. Harinath Yadav, perfectly fine. So, एक query Google form में थी, sir, answer to the question, how did you establish yourself? पहले let me start with that. How did you establish yourself? मैंने कैसे establish किया अपने आप को? As Dr. Shalu has mentioned about the qualification, so I did my 12th in 94, and from 94 I did my graduation from SRCC, and after doing graduation, till that time I was not doing any professional course. मेरा एक friend है, उसने मुझे कहा चलो CA करते हैं. I thought, okay, let's join. There was no CA in my family. और उस समय CA का रिजल्ट 1 to 2% आता था. ऐसे ठीक है ज्वाइन कर लेते हैं, पास तो होना नहीं है. We joined along with MCOM from Delhi School of Economics. We used to go for the classes in MCOM. उसके बाद I used to go for the CA articleship. फिर आके हम पढ़ाई करते थे. Then I cleared my CA. Side by side cleared my MPhil. आप में से बहुत लोग मेरे से पूछेंगे सर आपने MPhil क्यों किया? The reason for doing MPhil was only because to do PhD from Delhi at that time MPhil was mandatory. That was the reason I enrolled myself in MPhil. आप में से बहुत लोग पूछेंगे मैंने MCOM क्यों किया? क्या सर MCOM का बेनिफिट CA में मिलेगा? नहीं. I only did MCOM because I wanted to enter into a teaching job, lecturership job. That was the reason मैंने MCOM किया. उसके बाद मैंने UGC नेट का एग्जाम दिया. Then I got a permanent job in Khalsa College. I was a permanent faculty in Khalsa College. I still remember 1st November 2006 I resigned. Many people said to me, sir, why you are resigning? You can take a leave. I said, नहीं. मेरे कुछ colleagues थे जिन्होंने मुझे motivate किया. That is the reason I'm saying right decision, right advice helps you. They said, Pankaj, it's the right time you leave and you go for some consulting job. You have a very good consulting bent of mind. They forwarded my CV to 2-3 companies. I got selected in one of the company. Then I did 2 years consulting with them. उसके बाद I got a job in E&Y, Ernst & Young. E&Y में मैंने job किया. 2009 I resigned E&Y. Why I resigned? Because I wanted to start something of my own. मुझे लगा now let me start something of my own. So I started my own company. आप अभी भी गूगल में डालेंगे तो PA बिजनेस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड आपको गूगल में पता लग जाएगा हु आर द डायरेक्टर्स. फिर 2011 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोजेक्ट आया. उसमें स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट आया. जितनी भी स्मार्ट सिटीज बन रही हैं उसकी सारी गाइडलाइंस फाइनेंस की मेरे हाथ की लिखी हुई हैं. There are many smart cities I have worked. Internationally काम किया. And recently we are working in Jharkhand. अगर आप में से कोई झारखंड में है या आपके रिलेटिव्स हैं तो झारखंड में we are helping the state government in preparation of policies, rules, regulations, training. And in Tamil Nadu we are helping the state government in formulation of policies, guidance, financial modeling, projections. Side by side on weekends I take my classes for CA Foundation. So this answers to your query how I have established myself. It is not a one-day job, it is not a one-year job. It is a continuous effort which we have been putting, and even now we have been putting. Dr. Shalu will share, yesterday she called me. At that time I was in Ranchi at that time. She said, is a presentation ready? I said, no, presentation is not ready. I'll reach home and I'll prepare a presentation. I have reached home yesterday at 12 midnight. And then I started preparation presentation. Why I'm sharing this? There is no shortcut of hard work. No shortcut. So there's 24 hours कम भी हो सकते हैं, 24 hours बहुत भी हो सकते हैं. It depends upon you, how you want to utilize your time. So this
answers this query. Any query you want to ask at this point of time about how I have established myself, you can just write in the chat box. I can answer at that point of time. Anyone want to refer, they can refer the YouTube channel also. YouTube channel में कुछ videos हैं which you can refer. These are some of the images when I am taking a training of the IAS officer, because मेरा interaction directly IAS officer से होता है. Okay, perfectly fine. Now, as a student, चलिए as a student आते हैं. मुझे अपना टाइम याद है, मेरे खुद बच्चे हैं तो I remember उनको भी प्रॉब्लम रहती है. As a student, problem of plenty. Plenty इसलिए अगर एक ही चीज होती तो आप सिर्फ उसी के पीछे भागते. But the issue is you have a problem of plenty. I still remember 97 में हमारे किसी प्रोफेसर ने हमसे, कॉस्टिंग के प्रोफेसर थे, अगर मुझे नाम याद आ रहा है शायद रिस्पेक्टेड आरसी गुप्ता सर थे. ही आस्क्ड एवरीवन व्हाट डू यू प्लान टू डू आफ्टर कॉलेज. कॉलेज के बाद क्या करोगे. मेरे एक फ्रेंड ने कहा पीकेबी. कोई बताएगा पीकेबी क्या होता है? कैन एनीवन टेल व्हाट इज पीकेबी? Which degree is this? PKB is which degree? I'm waiting in the chat box. Isha says no idea, sir. Rekha Singh, no idea. Ritik Gupta, don't know. You will be surprised. It is Papa ka business. It is Papa ka business. Anshul Singh, it's right. Papa ka business. So logically, those who have their father business, they were born with a silver spoon or a golden spoon. But what about others? Even those who have an established business, they would like to add something in the business. So even they need to add the skills. So everyone has got the new degree today, PKB. Ritik, Tisha, right. So the queries which were asked from the student, sir, what are the skills which are required for earning after the BCom? What happens if we don't get the job as per the passion? So we will try to answer all these queries. See, if you don't get a job as per your passion, first try to do as per the passion. That is the reason that new education policy which is coming up, it is ensuring that every student takes some skills like arts, music, some hobbies. Because generally abroad, that is the reason in abroad, student apart from the subject also take one skill which they can convert to the career. If you don't get the job as per the passion, then try to enjoy your passion separately. Do not leave your passion. As I love teaching, even I have left teaching, still I am delivering lectures on weekends. As I love teaching, that's my passion. Then what are the skills which is required for after BCom? As far as skills are concerned, it changes with the job. But there are two major skills which every one of you should have. One is a communication skill, and communication does not mean speaking only in a fluent English. Communication का मतलब भाषा, सामने वाले को आपकी बात समझ में आनी चाहिए. The communication skill is the one and the foremost requirement which is required for all the jobs. Second, that the major requirement is your computer skill. And computer skill does not mean your programming language, nothing. Minimum MS Office. And MS Office, you should be sharp. Shortcuts. MS Office means MS PowerPoint, MS Word. You should know how to put a hyperlink. You should know how to prepare reports directly. In Excel, you should know to prepare logical formulas. So
These are the two basic skills which all of you should have it. If you don't have it, start acquiring the short-term courses. Nowadays there are many videos available on YouTube on Excel. Start looking at it, watching at it and practicing it. because आप किसी भी जॉब में चले जाइए, चाहे एडवर्टाइजिंग चाहे मार्केटिंग, आपको जितनी रिपोर्ट्स बनानी है, MIS बनाने हैं, वो सारे एक्सेल में बनाने हैं. रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन फाइनेंस, ह्यूज. जब हम लोग, आप सब प्राइमरीली आप सब कॉमर्स स्टूडेंट है, कॉमर्स में आप जर्नल करते हैं, लेजर करते हैं, ट्रायल करते हैं. Nowadays, no one prepares a ledger, no one prepares a trial balance, no one prepares a financial statement. You only pass the journal entry. Based on the software, Tally, Busy, ERP, all programs are interlinked, all reports are generated automatically. So that is the reason. Technology role is huge. जब आप प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं, आजकल आप बैंक में पेमेंट करते हैं, बैंक में आप कोशिश करते हैं ऑनलाइन पेमेंट करने की, डिजिटल पेमेंट्स की. अगेन टेक्नोलॉजी इन फाइनेंस. तो मैंने आपको MS ऑफिस बोला, अगेन टेक्नोलॉजी इन फाइनेंस. तो टेक्नोलॉजी इज ह्यूज, बट कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्निक आपको एक्वायर करनी है, वो जॉब पे डिपेंड करेगा. आपको बेसिक स्किल आपको क्या चाहिए? MS ऑफिस बेसिक चाहिए, MS ऑफिस. Tally, if anyone wants to enter into accounting job, yes, you can learn Tally. There are many institute which teaches you 2 to 3 months Tally course. Why not? Studies or earning. As I have taken my example, if there is no family pressure, please complete your studies full and then start earning. Do not mix it. Trust me, it will be very tough. झारखंड में मेरी टीम में 15 लोग हैं, उसमें से 2-3 लोग CA के लास्ट लेवल पे अटक गए हैं क्योंकि उनकी मैरिज हो गई है, फैमिली प्रेशर था, जल्दी जॉब कर लिया, तो अब उनसे पढ़ाई नहीं हो रही है. Do not start earning unless until you complete your studies. Job plus CS, इसकी discussion we'll do it in the later slide. Job after BCom, we'll do it. How to start a career? First thing to start a career is to acquire a skill. Minimum education skill, आपके पास ग्रेजुएशन तो आ ही गया है. कम्युनिकेशन स्किल आपको खुद डेवलप करनी है. थर्ड इज टेक्निकल स्किल, विच आई एम सेइंग द MS ऑफिस एंड द टैली. ये बेसिक 3 टेक्निकल स्किल्स हैं, टेक्निकल, कम्युनिकेशन, सॉफ्ट स्किल्स एंड द एजुकेशनल स्किल्स. ये मिनिमम 3 आपके पास होनी चाहिए, मिनिमम 3. प्लस द राइटिंग, क्योंकि अगर आप मीडिया में जाते हैं तो मीडिया में या आजकल डिजिटल मार्केटिंग में जाते हैं तो आपकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए. राइटिंग का मतलब हैंड राइटिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कंटेंट राइटिंग. आपको लगता है कि मैं गूगल में डालूंगा, गूगल से कॉपी पेस्ट कर लूंगा. मैक्सिमम मीडिया हाउसेस हैव अ सॉफ्टवेयर. उस सॉफ्टवेयर में दे कैन इमीडिएटली चेक कि आपका कंटेंट ओरिजिनल है या कॉपीड है. जैसे यूट्यूब में होता है, यूट्यूब में आप कोई कंटेंट डालिए, अगर वो ओरिजिनल नहीं होगा वो इमीडिएटली कंटेंट हटा देगा, क्योंकि गूगल के पास वो सॉफ्टवेयर है. तो आपको लगता है चलो मैं गूगल से कॉपी पेस्ट कर लूंगा, नहीं हो सकता है. तो अगर किसी का लिखने का, सोचने का तरीका बहुत अच्छा है तो वो भी एक अच्छी जॉब हो सकती है. इट्स अ गुड पैशनेट जॉब. मैं एक एग्जांपल लेता हूं इसमें. खालसा कॉलेज में हमारे एक सीनियर प्रोफेसर थे, डॉक्टर आदित्य कुमार आर्य. उनकी डॉटर 12th तक कॉमर्स में थी, श्रीराम कॉलेज से कॉमर्स किया. बीकॉम कॉमर्स करने के बाद उन्होंने CA वगैरह नहीं करा, उनका राइटिंग में इंटरेस्ट था. शी ज्वाइंड द मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म. मास कम्युनिकेशन करने के बाद शी ज्वाइंड NDTV. आज वो लंदन में है, BBC में.
सो इट्स नॉट नेसेसरी कि कॉमर्स करके आपको कॉमर्स की ही जॉब करनी है, तो कॉमर्स को आप पैशन से भी लिंक कर सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है. That is the reason I'm taking a real life example. I'll take one more example. Let me run it presentation. सर एक बच्चे का आया, सर फैमिली प्रेशर है, मुझे जॉब करना है. कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी एक ऑप्शन है मेरे पास. अगर आपको जॉब करनी है, स्टिल आई हैव अ ऑप्शन. डोंट वरी अबाउट दैट. दीज आर सम ऑफ दी जॉब जो आप लोगों ने मीडिया मूवीज में देखी हुई है. आईपीएस, आईएएस, प्रोफेसर. अब हम इन्हीं की चर्चा करते हैं, इन्हीं की डिस्कशन करते हैं. Why decision after graduation is important? अब ग्रेजुएशन के बाद ये वेबिनार क्यों इंपॉर्टेंट है? Why this webinar is very very important for you? Let's discuss that. जब आप 12th में थे, मुझे बताइए 12th तक आपका एक स्टूडेंट का फेज था. 12th तक आपका टारगेट क्या होता था? जब आप जितने कोचिंग सेंटर्स में जाते थे, एनी कोचिंग सेंटर यूज्ड टू गो, दैट कोचिंग सेंटर वाला कहता था, बेटा तेरे को श्रीराम कॉलेज में एडमिशन लेना है. You have to take admission Hindu college. You have to get 95% minimum. बताइए yes or no? I am waiting in your chat box. बताइए 12th तक आपका टारगेट सीबीएसई के मार्क्स थे या नहीं थे? बताइए. सर फॉरगेट अबाउट द कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट की ऐसी की तैसी. सर कंसेप्चुअल क्लैरिटी बाद में ले लेंगे. क्रैमिंग करवा दो सर, नंबर मिल जाए बस अपने को. That was your target. That was your only target. एग्रीड, आई एग्री. जो लोग साइंस स्टूडेंट हैं, अगर उन्होंने इंजीनियरिंग या एमबीबीएस का एग्जाम दे दिया, दैट इज सेपरेट. उनका विजन क्लियर है कि मुझे इंजीनियरिंग में जाना है, मुझे एमबीबीएस करना है, फेयर इनफ. बट कॉमर्स वालों का प्राइमरीली होता है मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है. बट अब कॉलेज में एडमिशन मिल गया, यू आर इन द कॉलेज. अब आप कॉलेज में ही हैं. कुछ लोग फर्स्ट ईयर में होंगे, कुछ सेकेंड ईयर में होंगे, कुछ थर्ड ईयर में होंगे. Now your major target start. After graduation अब क्या करना है? पापा मम्मी ने 21 साल पढ़ा दिया, अब जॉब करनी है, कैरियर बनाना है, एजुकेशन करना है. तो अब आपका डिसीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है. अब अपने को give one day to yourself, give a thought process. जो आज हम वेबिनार के बाद टेक अवे लेके जाएंगे, थॉट प्रोसेस. एक दिन बैठो, सोचो कि अब मुझे ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है. क्या मैरिज करके सेटल होना है? मैरिज के लिए भी जॉब चाहिए. बट जॉब में मैंने बैंक ऑफ अमेरिका का एग्जांपल ले लिया, एक लेवल पे अटक जाओगे. मैंने अपना एग्जांपल लिया आपके साथ. तो थिंक इन दैट पर्सपेक्टिव. आज के बाद वो डिस्कस करना. डोंट रन फॉर डिग्रीज. जैसे जब आप 12th के बाद आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे होगे, तो सब ने आपको कहा होगा कि कॉलेज को मत देखो, कोर्स को देखो. ऐसे ही मेरा ये एडवाइस है. बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बीकॉम कर लिया, एमकॉम कर लिया. डू नॉट रन फॉर डिग्रीज, डू नॉट रन फॉर डिप्लोमा कोर्सेज कि मेरे फ्रेंड ने किया मुझे भी करना है. डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स. डोंट. आप देखो कि आपको कहां जाना है और वहां जाने के लिए आपकी सीढ़ियां क्या हैं. ये ध्यान रखिए. अब ऑप्शंस क्या क्या है. अब ऑल दी स्टूडेंट जरा ध्यान से देखिए, मैंने कुछ ऑप्शंस आपके लिए बनाए हैं. इसके बाद भी ऑप्शन रह जाएगा तो बताइएगा, देन वी कैन डिस्कस दैट. पहला ऑप्शन ऑफ कोर्स कैन बी सीए. सेकंड कैन बी दी आफ्टर ग्रेजुएशन. यस, आफ्टर ग्रेजुएशन भी आप सीए कर सकते हैं. मैंने भी ज्वाइन किया था. सिर्फ 2 साल का लेट है जिन्होंने फाउंडेशन किया है और जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद ज्वाइन किया. सिर्फ 2 साल का फर्क होता है. आप एमकॉम कर सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी और लॉ एलएलबी का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं. मेरा एक स्टूडेंट था खालसा कॉलेज में, चंद्रप्रीत सिंह, उसने यही किया है. मेरी कंपनी का डायरेक्टर है मनीष कुमार, उसने कंपनी सेक्रेटरी और लॉ किया, वो हमारे साथ एमकॉम में भी था. आप एमबीए कर सकते हैं, सीएफए कर सकते हैं. श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एक कोर्स देता है ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशन, जीबीओ, आप वो कर सकते हैं. ये कुछ ऑप्शंस. सीए में आपकी पहली क्वेरी, सर मैं तो लेट हो गया हूं.
मेरे कुछ फ्रेंड्स ने तो इंटर क्लियर कर लिया है, सर मैं लेट हो गया हूं। नो यू आर नॉट लेट, बेटर लेट देन नेवर। सर मैं साइंस स्टूडेंट हूं, नथिंग, साइंस स्टूडेंट भी सीए कर सकते हैं, उनको सिर्फ थोड़ा सा अकाउंट्स में दिक्कत आती है, अदरवाइज किसी टॉपिक में दिक्कत नहीं आएगी आपको। सीए करने के बाद you can enter in any sector, शेयर मार्केट, इंश्योरेंस सेक्टर, एडवर्टाइजिंग सेक्टर, क्योंकि फाइनेंस की जॉब हर जगह होगी, हर जगह होगी। स्मार्ट सिटीज जहां मैंने काम किया है, स्मार्ट सिटीज में जबलपुर स्मार्ट सिटी मैंने काम किया है, पटना स्मार्ट सिटी मैंने काम किया है, उनकी फाइनेंशियल मॉडलिंग क्या होती है? अच्छा ये टॉल बनेगा, ये टॉल 30 इयर्स के लिए, इसमें इतना खर्चा आएगा, कितने सालों में इसके पैसे रिकवर हो जाएंगे, जिसको आप कैपिटल बजटिंग में पढ़ते हैं। बीकॉम में कैपिटल बजटिंग नाम का चैप्टर होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, वो सारा एक्सेल में मॉडलिंग बनती है। सर एमकॉम कर लें, बेटा एमकॉम आपके टीचर्स आपको ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। एमकॉम आप तभी करिएगा अगर आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है, आपका स्कूल टीचिंग या कॉलेज टीचिंग में इंटरेस्ट है, तब करिएगा, अदरवाइज तब करिएगा किसी जॉब के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मैंडेटरी है। जैसे कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाने के लिए 16 इयर्स का एजुकेशन मांगा जाता है, तो कुछ स्टूडेंट्स 1 साल एमकॉम करके चले जाते हैं। तो आप एमकॉम की डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, तब करिएगा जब आपको टीचिंग में जाना है। आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर सकते हैं, जैसे मैंने एसआरसीसी का एग्जांपल लिया, एक कॉलेज है गुरु गोविंद सिंह कॉलेज, वो डिप्लोमा इन मार्केटिंग प्रोवाइड करता है। तो आपको अगर मार्केटिंग में जाना है, यू कैन डू दैट। आपको इंटरनेशनल बिजनेस में जाना है, यू कैन डू जीबीओ वाला कोर्स। एमकॉम ओनली डू अगर टीचिंग में जाना है। सीएस और लॉ, ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन। किसी ने अगर अभी भी स्टार्ट नहीं किया, आप कंपनी सेक्रेटरी स्टार्ट कर लीजिए। कंपनी सेक्रेटरी आपका मेनली कॉरेस्पॉन्डेंस है, आपको बाद में ट्रेनिंग करनी होती है, और साइड बाय साइड आप लॉ में एडमिशन ले लीजिए। मैक्सिमम टाइम पीरियड 4 साल का है, 4 साल में कंपनी सेक्रेटरी भी हो जाएगा, लॉ भी हो जाएगा। बहुत अच्छी कंपनी में आप कॉर्पोरेट लीगल प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, रेखा ने कहा सर यू आर माय फाउंडेशन अकाउंट्स टीचर। चलिए शुक्रिया रेखा जी, वो मेरी कोई एक अकाउंट्स की स्टूडेंट भी यहां बैठी है, शुक्रिया। सो आप सीएस और लॉ में यू कैन स्टार्ट योर लीगल प्रैक्टिस ऑल्सो, यू कैन स्टार्ट योर लीगल प्रैक्टिस। आप अपना इंडिपेंडेंट, जैसे मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की है, आप भी अपनी लीगल फर्म स्टार्ट कर सकते हैं बाद में। जैसे मेरा जो डायरेक्टर है कुमार मनीष, उन्होंने जॉब करने के बाद अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करी। एमबीए, सीएफए, जीबीओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन फाइनेंस में कैरियर बनाना है, जॉब नहीं। जॉब ग्रेजुएशन करके भी मिल जाएगी, लेकिन कहीं एक लेवल पे जाके अटक जाओगे। वहां पर ऊपर जाने के लिए आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए। सीएफए इंडिया का है, सीएफए यूएसए का है, लेकिन एमबीए और सीए में एक फर्क है। सीए में कोई ये नहीं पूछेगा सीए कहां से किया, नो वन विल आस्क यू, बट इन एमबीए certainly they will be asking you from where you've done the MBA. So kindly, it is, do not waste your money before entering to MBA, before joining the MBA. Please ask your seniors, what was the placement, what is the job, placement में भी जॉब क्या मिल रही है। दे में से पैकेज ऑफ 10 लाख, 10 लाख किसके लिए? सेल्स की जॉब के लिए। क्या आप सेल की जॉब के लिए आपका बेंट ऑफ माइंड है? क्या आप सामान बेच सकते हो? क्या आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी है? So don't go for only पैकेज। तो एमबीए इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले ये देख लेना कि वहां पर पास में प्लेसमेंट का पैकेजेस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमबीए में आप इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या होता है, जैसे शेयर मार्केट, आपको पता है शेयर मार्केट में हर कोई इन्वेस्ट करता है। अब शेयर मार्केट में किस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए? शेयर तो बहुत सारे हैं,
किस शेयर में प्रॉफिट मिलेगा? मार्च से लेके आज तक, अगस्त तक कुछ शेयर गिरे भी हैं, कुछ शेयर बढ़ भी गए हैं। ये कौन सिलेक्शन करता है? ये इन्वेस्टमेंट बैंकर करता है। उसके लिए आपको एमबीए में सिखाया जाता है, आपको सीए में सिखाया जाता है। कमोडिटी ट्रेडिंग, गोल्ड का प्राइस मार्च में 32,000 पर 10 ग्राम था, आज 50 पे आ गया, 58 भी गया था। एंड यू टेक माय वर्ड्स, एंड ऑफ दिसंबर इट विल बी 75,000 रुपीज। वो मेरी प्रिडिक्शन है। तो ये कैसे होता है? ये सारी चीजें आपको एमबीए में सिखाई जाती है, सीएफए में सिखाई जाती है सारी आपको। और एमबीए सिर्फ फाइनेंस में नहीं होता, एमबीए एचआर में भी होता है, मार्केटिंग में। अगर आप में से कोई ह्यूमन रिसोर्स में जाना चाहे, क्योंकि हर कंपनी को एक एचआर डिपार्टमेंट होता है, हर कंपनी का एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है। बिना मार्केटिंग के सामान बिकेगा नहीं। तो डिजिटल मार्केटिंग आजकल बहुत फेमस है। कैन यू डू दैट? ऋतिक गुप्ता ने 60,000 लिखा। ऋतिक गुप्ता 60,000, मुझे सब आई डिड नॉट गेट व्हाट डू यू मीन बाय 60,000। फिफ्थ ऑप्शन इज यूपीएससी, then staff selection commission, banks, सीमा। टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट सीमा? अच्छा, ऋतिक गुप्ता कहते हैं 60,000। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट सीमा? टेल मी, लेट्स सी। सोनिया ने कहा फॉरेन का कोर्स है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट के लिए। नो आइडिया, आई टेल यू। कुछ को आइडिया है, कुछ को आइडिया नहीं है, आई टेल यू दैट। ऋतिक गुप्ता सेज रिलेट्स टू अकाउंट्स। ट्रस्ट मी, इफ यू हैव अ गुड राइटिंग स्किल, I will advise you devote 1 year, 2 year for UPSC examination. यूपीएससी में 22 सर्विसेज, 22 सर्विसेज होती हैं। आईएएस है, आईएफएस है, आईपीएस है, इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विसेज होता है। अभी रिसेंटली एक मेरी स्टूडेंट थी 2008-9 में, स्वाति शर्मा, शी हैज गॉट 17th रैंक। तो आपको उसका वीडियो देखना है, मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। शी विल गाइड यू। और यूपीएससी में एक बार का हार्डवर्क है, बेटा, एक बार का हार्डवर्क है। जो आपने अजय देवगन देखा था रेड वाला IRS, दैट व्हाट आई वांट टू कन्वे टू यू। काइंडली, अगर आपका रियली इंटरेस्ट है तो आप यूपीएससी में फोकस करो, इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करो। बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन है, आपके लिए। आपको जो पावर यहां मिलती है, पावर कहीं नहीं मिलेगी आपको। देन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। आई टेक एग्जांपल, जब मैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट में मैंने काम किया, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर कहते हैं। मुकेश गुप्ता, ये वीडियो कहां अवेलेबल होगा, ये आप पूछ सकते हैं मैम से। सो व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर द मिनिस्ट्री में सीनियर लेवल पे आईएएस ऑफिसर होते हैं, बट उनके नीचे सेक्शन ऑफिसर, अंडर सेक्रेटरी, डायरेक्टर, ये सारे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से आते हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर, जो आप इनकम टैक्स एक्ट में पढ़ते हैं, ये सारे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से आते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की प्रिपरेशन करिए, ठीक है। बिल्कुल। ऋषभ, यू कैन डू एमबीए इन फैमिली बिजनेस, व्हाई नॉट? एसपी जैन में है। बैंक में, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो, बैंक में आईसीआईसी बैंक का ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग चलता है। उसमें वो आपको ड्यूरिंग दी एजुकेशन दे ऑफर यू स्टाइपेंड ऑल्सो। कोटक महिंद्रा बैंक का ग्रेजुएट प्रोग्राम चलता है।
आप में से कुछ स्टूडेंट्स जिनको ग्रेजुएशन के बाद इमीडिएटली जॉब करनी है, वो आईसीआईसी बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक का ग्रेजुएट प्रोग्राम ज्वाइन कर लें. ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम, take a work experience of 3 years, और after 3 years do the executive program MBA, do the part time MBA. तो आपकी जॉब भी हो जाएगी, आपका पार्ट टाइम MBA भी हो जाएगा. That you can do that. Yes, ऋतिक गुप्ता ने कहा नेक्स्ट ईयर से कॉमन एग्जाम होगा. यस ऋतिक गुप्ता, बिल्कुल. मैं अभी आज की बात कर रहा हूं, बट ऑफ कोर्स इन फ्यूचर फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड ये एग्जाम सब कॉमन हो जाएंगे. यू आर राइट, एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर यू ऋतिक गुप्ता. इट विल बी वेरी इजी. तीशा रोटेला कहती है सिलेबस इज सो वाइड. तीशा, दैट इज द रीजन आई एम गिविंग यू 1 ईयर. जितने भी आईएएस ऑफिसर से मेरी बात हुई है, राइट, everyone has done it in 1 year. Tisha, give 2 years. Tisha, 2 साल डिवोट करो. 2 साल में इजिली कवर होगा. और मेरी एडवाइस है टीशा, गो एंड वॉच द वीडियो स्वाति शर्मा मेरे यूट्यूब चैनल पे है. यू विल गेट मोटिवेटेड, यू विल गेट सम गाइडेंस. सी, ग्रेजुएशन के बाद आपको कोई भी कैरियर ज्वाइन करना है तो आपको थोड़ा हार्डवर्क तो करना पड़ेगा. ये 12th के सीबीएसई नहीं है, तो लॉजिकली ये प्रोफेशनल पाथ है. प्रोफेशनल पाथ में थोड़े हर्डल्स आएंगे. रुद्र गोयल, मेरे यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्टिंग में बताया था, पंकज गोयल, अकाउंट्स की दुनिया. नाउ व्हाट इज सीमा? सीमा इज सर्टिफिकेशन इन मैनेजमेंट अकाउंटेंट. जैसे हमारे यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, ऐसे यूके में मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है. सर वहां हम कैसे जा सकते हैं? एनी वन ऑफ यू जिसको सीए नहीं करना, जिसको सीएस नहीं करना, दे कैन डू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जिसे हम आईसीडब्ल्यूए कहते हैं. कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्लियर करने के बाद आप डायरेक्टली सीमा ज्वाइन कर सकते हैं. आपको सिर्फ सीमा का लास्ट स्टेज देना होगा. सीमा की फर्स्ट और सेकंड स्टेज आपके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएंगी, और सीमा करते ही आपको यूके में जॉब मिल जाएगी. यू कैन गेट अ जॉब इन यूके. सीमा इज अ वेरी गुड केस. तारुष, सीमा इज अ एडवांस स्टेज ऑफ सीएमए. सीएमए इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जिसको हम आईसीडब्ल्यूए कहते थे. Once you clear that, you can directly give the exam for the last level of CIMA. Rishabh Jain, MBA in family business is good. You can join that. उसमें कोई दिक्कत नहीं है. तो मैंने इसलिए इतनी ऑप्शंस बनाई हैं आपके लिए. स्टॉक मार्केट कैन बी द ऑप्शन, इंश्योरेंस एडवाइजर कैन बी द ऑप्शन, एक्चुअरीज कैन बी द ऑप्शन, प्लस द कंप्यूटर स्किल विच आई वाज सेइंग, टैली एंड एक्सेल. स्टॉक मार्केट में अगर आपको काम करना है किसी भी ब्रोकर के साथ, मोतीलाल ओसवाल, जेएम फाइनेंशियल, उनके साथ काम करना है, तो आपको अपनी एक्सेल की स्किल, कंप्यूटर स्किल बहुत अच्छी चाहिए. आपकी मैथ्स की स्किल बड़ी अच्छी होनी चाहिए. और एनसीएफएम का कोर्स होता है ऑनलाइन का, वो कर लीजिए. ठीक है. सोनिया, अक्का से बेटर सीए, अक्का से बेटर इज सीएफए. हरिनाथ यादव, किसी का कोई गार्डियन नहीं होता है. ठीक है, आपको खुद तैयारी करनी. मैंने सीए ज्वाइन किया, मेरा कोई गार्डियन नहीं था, मैंने खुद ही तैयारी करी है. ठीक है. खुशबू खुराना, देयर कैन बी मेनी इंस्टीट्यूट ऑफ एमबीए, मेनी इंस्टीट्यूट, मोर देन 100, राइट. सो किसकी क्या रेटिंग है? किसी भी एमबीए इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले उसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड जरूर चेक करो, फिर ज्वाइन करना. नाउ इंश्योरेंस एडवाइजर एंड एक्चुअरीज आर इंटरलिंक. हर इंश्योरेंस कंपनी को वैल्यूअर चाहिए होते हैं. वैल्यूअर कैसे? 2014 में कश्मीर में फ्लड आया. अब फ्लड में कितना लॉस हुआ, कितना क्लेम देना है, उसकी वैल्यूएशन करनी है. वो वैल्यूएशन कौन करता है? एक्चुअरीज करता है. जितनी कंपनीज में, कॉलेजेस में एम्प्लॉइज हैं, अब एम्प्लॉइज जब रिटायर होंगे तो इनको रिटायरमेंट बेनिफिट दिए जाएंगे. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 है. कितना रिटायरमेंट बेनिफिट देना है?
क्या लायबिलिटी आएगी, उसकी वैल्यूएशन कौन करता है? एक्चुअरीज करता है। आप खुद इंश्योरेंस के एजेंट बन सकते हैं, बहुत अच्छा पैसा है इंश्योरेंस एजेंसी में, प्रोवाइडेड आपकी कम्युनिकेशन स्किल बड़ी अच्छी हो, आपको सामान बेचना आता हो। तो इंश्योरेंस एडवाइजर इज ऑल्सो गुड फील्ड विच यू कैन डू फुल टाइम और पार्ट टाइम ऑल्सो। एक्चुअली साइंस इज वेरी वेरी गुड। अगर आपका मैथ्स और इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा है, वेरी गुड। मेरे 2-3 स्टूडेंट, उन्होंने सिर्फ 3 या 4 एग्जाम क्लियर किए थे, दे गॉट अ जॉब। आज उसमें से 2-3 बच्चे कनाडा में हैं। तो एक्चुअल साइंस, मेरा खुद पार्टनर, मेरी सीए फर्म में मेरा खुद पार्टनर एक्चुअली अब कर रहा है, बिकॉज हमें क्लाइंट्स मिलते हैं, तो क्लाइंट्स के लिए वी नीड इट। Actually science is very very good, very very good. It's a future. It is a future because future में data science, data analytics will come, and data analytics is linked to your actual science. Very good course. लेकिन आपका मैथ अच्छा होना चाहिए। मैथ अच्छा नहीं है तो बेटा मत जाना। गौरव गर्ग, अक्का फॉर अ सीए ड्रॉप आउट इज गुड, नो हार्म, बिल्कुल गुड। Then, as I was mentioning, टैली एक्सेल करके आप डाटा साइंस कर सकते हो। डाटा साइंस कोर्स में फाइनेंशियल मॉडलिंग का केपीएमजी, E&Y, ग्रैंड थॉर्टन, इनकी वेबसाइट पे जाओ। आजकल ये ऑनलाइन कोर्सेज दे रहे हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग का, ज्वाइन कर लो, ये बेनिफिट मिलेगा। 10,000 के आसपास की कॉस्ट होती है, डाटा साइंस की 30,000 की कॉस्ट होती है। कर लो ज्वाइन, ये आपको हेल्प करेगा। बट डाटा साइंस पाइथन लैंग्वेज में मत करना। We are not a IT people here. जो साइंस स्टूडेंट हैं, they can do Python language, but data science with the financial modeling we can do that. Piyush Verma, MBA from abroad. Frankly speaking, if you do not get admission here, you can go for MBA from abroad and you can get a job there. Again, I am saying you have to see the placement record. Piyush Verma, abroad का benefit तब है जब आपको वहां पर परमानेंट रेजिडेंसी मिले, अदरवाइज आप वर्क परमिट पे जाओगे। तो कहीं भी फॉरेन जा रहे हैं तो फॉरेन में आप ये मेक श्योर करिए कि आपको रेजिडेंसी मिले। अगर रेजिडेंसी नहीं मिल रही है तो आपका फ्यूचर नहीं है उधर, बिकॉज यू विल गो ऑन अ वर्क परमिट, और वर्क परमिट एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। नीरज पटेल कहते हैं मैथ अच्छी नहीं है लेकिन अच्छी लगती है। बेटा वो आपकी कॉल है कि मैथ्स में बहुत अच्छा होना पड़ेगा एक्चुअल्स के लिए। सो क्रिएटिविटी की हम बात करते हैं। स्किल्स आपने पूछा, स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल मैंने क्लियरली कहा था। फिजिकली डिमांडिंग का मतलब हार्ड टाइम एफर्ट्स, टाइम आवर्स बहुत होते हैं। ये मत सोचना 9 to 5 की जॉब होगी। आजकल इवन गवर्नमेंट जॉब्स भी कम से कम आपसे 10 से 12 घंटे का मांगते हैं। यू शुड नो हाउ टू हैंडल द प्रेशर। ऑफ कोर्स एकेडमिक स्किल। मेरी आपको फाइनली 3 एडवाइस हैं। आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट करिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करिए, अपनी कंप्यूटर स्किल अचीव करिए। उसके बाद जो ऑप्शंस मैंने आपको बताया उसमें से कोई भी ऑप्शन आप लेना चाहें, यू कैन टेक इट। Abhishek Verma ji, now Dr. Shalu, I am through with my presentation. If any queries are there, we can take it, please. Hopefully, I have tried to cover everything. Yes. Anyone with any queries, please ask. Mukesh Gupta, computer skill में I am saying your MS Office is mandatory. MS Office में MS Excel is mandatory. फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोर्स कर सकते हैं। देयर इज वन वेबसाइट, नोट डाउन, उद्यमी, UDEMY, उद्यमी। तो उद्यमी में बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, वेरी इकोनॉमिकल, लेस देन 1,000 रुपीज। ज्वाइन दैट, फाइनेंशियल मॉडलिंग, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज, एक्सेल, दैट विल हेल्प यू। तान्या बहल, जितना पॉसिबल है डू दी रेगुलर LLB। कॉरेस्पॉन्डेंस में आपको कभी भी LLB की जो स्किल है वो नहीं मिलेगी। प्रतिष्ठा बेस्ड MBA इन मार्केटिंग,
आप नॉर्मल एमबीए ज्वाइन करते हैं और मार्केटिंग एज अ सब्जेक्ट आप थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में लेते हैं। तो अगर मार्केटिंग में आपको जाना है तो मार्केटिंग में प्राइमरीली यू शुड नो द क्रिएटिविटी, कम अप विद द गुड आइडियाज। गुंदेश्वरी इज उद्यमी, UDMY। ऋतिक गुप्ता, मुझे स्वयं कोर्स का आइडिया नहीं है। रेखा विद आर्टिकलशिप, नो रेखा, जो बच्चे सीए कर रहे हैं मेरी उनको क्लियर एडवाइस है, जब तक उनका इंटर क्लियर नहीं होता है, डू नॉट डिस्टर्ब एनीथिंग, डू नॉट चेंज योर माइंड, कंप्लीट योर सीए इंटर। जो लोग यूपीएससी कर रहे हैं, जस्ट फोकस ऑन यूपीएससी, नथिंग एल्स। तन्मय गुप्ता, बीकॉम ऑनर्स रेगुलर। तन्मय, ये आपकी कॉल है, इफ यू कैन मैनेज योर कोचिंग्स देन रेगुलर। Students, if you are having more questions, you can put that in chat box. Sir, I think no more questions are there. Maximum queries, Tisha, have taken it. Yes, sir. Yeah. So still if we, Rashi Tyagi said job after BCom honors. Rashi, nothing, complete your CA inter. When you're doing CA, give time to yourself. Rudra Goyal, how to expand your family business, that depends upon your family business, and your father can guide you much better than us. Khushbu Khurana says MBA from finance or HR, which is more important? Khushbu Khurana, honestly, MBA for finance gives you more options. MBA from finance gives you more options. MBA from HR gives you limited options in the companies. Arushi Jain, bank probationary officers, all those coaching centers जो staff selection commission की coaching देते हैं, वो bank PO की coaching भी देते हैं. But my advice will be, bank PO, you will be working in the government sector. Or nowadays, every bank is getting privatized. So better is go for ICICI Bank or Kotak graduate program. That will help you. Tanya Behal, my advice will be, with CS, with company secretary, do LLB. Otherwise, nowadays even CA are doing a CS work. So you will have a limited scope. So do LLB, that's my advice. Rudra Goyal, UPSC, actual science, both are equally different. So my advice will be UPSC, if you can do that. Otherwise, actuarial, if you have a maths good. Pratishtha Besh say there will be a shortage of jobs after pandemic. Pratishtha, it will be other way around. Because maximum people have been thrown out or they have left the job. Now, the moment the situation get normalized, every company will be looking for the people. They will not find the people. You trust, you take my words, record my word, from January, there will be huge job opportunities. We are taking it as a boom period. Tanmay Gupta, actual science, again, both are different. Actual science and CA after 12, both are different. CA is more preferable part. Palak Chitkara, after BCom honors, career finance, immediately you can do NCFM course, you can enter into stock market. Janvi said, is it difficult to clear CA? Janvi, is it easy to clear MBA? Is it easy to clear IAS? Is it easy to clear SSC? Is it easy to clear actual science? Janvi, after 12th, all professional examination have some hard work. So there cannot be 100% success rate. So if you meet those people who have cleared, they will find CA very easy. If you meet those people who have not cleared, they will find CA tough. It's your call. Tarosh, B school don't want job experience. But if
You want to do a job, do your 3-year job, take an experience, and then apply. देवक कुमार, मुझे ईए का आइडिया नहीं है. देवक कुमार, आई डोंट नो अबाउट ईए. मोहित पांडे, आपका फाइनेंस में इंटरेस्ट नहीं है कि नॉलेज लेनी है, तो आप उद्यमी में जितने कोर्स हैं बेसिक वाले वो ज्वाइन करिए. लक्षिता गोला, यस, कैरियर बैंकिंग इज वेरी गुड, बिकॉज नाउ विदाउट बैंकिंग तो इकोनॉमी सर्वाइव ही नहीं कर सकती है. जिस दिन बैंकिंग शेयर्स बढ़ते हैं उस दिन स्टॉक मार्केट भी बढ़ती है. बिल्कुल. पायल कुमारी, गो एंड सी दैट वीडियो विच जो मैंने आपको बोला है. फैजन निजामी, सीएमए यूएस वाला, अगर आप सीएमए इंडिया से क्लियर करके जाते हैं तो आप यूएस का सीएमए बिल्कुल कर सकते हैं, तो मेरे को आइडिया है. बुंदेश्वरी, यस, बैंकिंग इज वेरी वेरी गुड आफ्टर ग्रेजुएशन. सौरभ गर्ग, सीए प्लस आईएम फ्रॉम एमबीए इज अ blast option. CA plus IM from MBA from IM, blast option. Do it. Very good. Prajwal Dhawan, frankly speaking, foreign languages, French and German are very important. My daughter is learning French. French I know and German are very important. Palak Chitkara, to start an investment banker, you have to go for MBA or CA. Buddheshwari, for banking, I have mentioned to you, immediately go to ICICI website or Kotak website, write in the Google ICICI graduate program. They will open a link and see the eligibility. Yes, Vansh Bhutani, FRM is a very good course, financial risk management. You can do that. FRM is a very good course. Tarosh, machine learning and artificial intelligence is a part of data analytics, and data analytics is relating to actual science. So guaranteed, anyone having artificial intelligence will have an upper edge. Ritik Gupta, if I remember correctly, it's 3-year. ICSE graduate program is 2 or 3 years. Vanshika Nirvan, if you're doing CA, then do not do any other thing. CA means CA. BCom plus CA is a very good option. Don't do anything. Anyone doing CA, don't do anything else. दीपक कुमार, अभी मैंने बताया बैंक पीओ या प्राइवेट बैंक सिमिलर है, क्योंकि मैक्सिमम बैंक आप प्राइवेटाइज हो रहे हैं, तो इससे बेटर प्राइवेट बैंक में काम करिए. इससे बेटर प्राइवेट बैंक में काम करिए. So I hope the queries are being resolved. So Yes, sir. Sir, you didn't even give me chance to take up the queries. You took them by yourself. So I'm really grateful to you. So thank you so much, sir, for this much needed session. We are so grateful to you that you found time out of your busy schedule for us. This was not like a usual boring webinar. You were so enthusiastic to give us all what you could in this limited time period. Personally, sir, I'm so inspired from you, because whatever you told was not written in any book or diary. Everything you told was a lesson. Once again, thank you so much, sir. Hope to see you soon in a seminar as well. Also, thank you so much, Shalu ma'am and Jitendra sir, for organizing such a wonderful webinar. Nothing better we could get in this limited time period. Really, thank you, pleasure. Sir. Thank you, Dr. Shalu. And Principal sir, thank you, sir. Thanks, Pankaj, for helping out my students, because this is one concern which everybody is, bothered about, and we are all studying to have a career, and definitely you have done wonders in your life, and best of luck and best of all my best wishes for your further endeavor. Thank you. Thank you. Pleasure. Thank you. Okay, so we can leave, I guess. Yeah, thank you. Yes, so once again, thank you so much, sir. Student, there is a feedback form link. Also. Yeah, yes, ma'am. I was about to thank them as well. So
Yeah, so thank you so much everyone for joining us today. We hope that you found this webinar useful, and we really hope to see you in our future webinars as well, because they are also going to be very interactive and informative. There is a feedback form link in the chat box. You can see that. After filling that, you will be getting an e-certificate. So thank you for joining us today. Thank you everyone for being there with us. Okay, so students, please fill the feedback form, and we'll shortly issue you your e-certificate. Okay, that might take a day or so, but definitely you will get it. Okay, so I am leaving. Thank you, Pankaj. You can also leave. Okay, okay. Thanks a lot. Bye.